خالد اپنے گھر گیا، اپنی ایک خادمہ سے کہا کہ وہ یوحاو یہودن کو بلا لائے۔ یوحاو اتنی جلدی سے اس کے پاس آئی جیسے وہ اس کے بلاوے کے انتظار میں بیٹھی ہو۔ تم نے مسلمانوں کو کامیابی سے دھوکہ دیا ہے، خالد نے یوحاو سے کہا، اور مغیث کے قبیلے کے لوگ تمہیں جادوگرنی کہنے لگے ہیں، لیکن یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا۔ میری بات غور سے سنو خالد، تم اپنے قبیلے کے نامور جنگجو ہو، لیکن تم میں عقل کی کمی ہے۔ دشمن کو مارنا ہے، تلوار سے مارو اور اپنی تیکھی نظروں سے ہلاک کر دو۔ تیر اور تلوار چلائے بغیر دشمن کو کوئی مجھ جیسی عورت ہی مار سکتی ہے۔ آج 4 سال بعد جب وہ صحرا میں تنہا جا رہا تھا تو یوحاو کی باتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ اس حد تک تو وہ خوش تھا کہ یہودی اس کے ساتھ تھے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہودیوں کی دوستی میں جہاں مسلمانوں کی دشمنی ہے وہاں ان کے اپنے مفادات بھی ہیں۔ البتہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یوحاو اگر جادوگرنی نہیں تو اس کے سراپا میں جادو کا کوئی اثر ضرور ہے۔ خالد کا گھوڑا مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پھر خبیب بن عدی اور زید بن الدسنہ آ گئے۔ لوگ ان کی بولیاں بڑھ بڑھ کر دے رہے تھے۔ آخر سودا ہو گیا اور قریش کے 2 آدمیوں نے انہیں بہت سے سونے کے عوض خرید لیا۔ یہ دونوں آدمی ان دونوں صحابیوں کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے والے ان 2 آدمیوں کو اس لیے خریدا ہے کہ ان اہل قریش کے خون کا انتقام لے جو احد کے میدان میں مارے گئے تھے۔ انہیں خریدنے والوں نے کہا، ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ قریش کے سردار اور سالار ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مکہ کی زمین مسلمانوں کی خون کی پیاسی ہے، ان 2 مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو۔ لیکن مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ہمارے دیوتاؤں عزا اور حبل کا مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ختم ہو لینے دو، اگلے دن انہیں کھلے میدان میں جا کر لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دینا اور پھر مجھے بلا لینا۔ خالد نے جب ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو وہ اس کے پاس گیا۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا، خالد نے ابو سفیان سے کہا، ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنی زمین کو مسلمانوں کا خون نہیں پلا سکے تو ہمیں حق حاصل نہیں کہ وہ مسلمانوں کو دھوکے سے یہاں لا کر ان کا خون بہایا جائے۔ ابو سفیان، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی 3-4 عورتیں تھیں؟ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کی آڑ میں بیٹھ گئے ہیں؟ خالد، ابو سفیان نے باروب لہجے میں کہا، خبیب اور زید کو میں بھی اتنے ہی قریب سے سمجھا کرتا تھا جتنا تم انہیں اپنے قریب سمجھتے تھے۔ تم اب بھی انہیں اپنا قریب سمجھ رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر تم انہیں آزاد کرانا چاہتے ہو تو لاؤ، اس سے دگنا سونا لے آؤ اور ان دونوں کو لے جاؤ۔ نہیں، پردے کے پیچھے سے ایک گرجدار نسوانی آواز سنائی دی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حمزہ کا کلیجہ چبا کر بھی میرے سینے میں انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی ہے۔ اگر ساری دنیا کا سونا بھی میرے آگے لا کر رکھو گے تو بھی میں ان مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، اگر میری بیوی بات کے درمیان یوں بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو۔ ہند کی آواز آئی، تمہارا باپ نہیں مارا گیا تھا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا تھا اور تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا۔ ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے۔ آگ جو میرے سینے میں جل رہی ہے تم اس کی تپش سے ابھی نا آشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پہ
जहां मर्दाना जाहो जलाल और एक जंगजू सरदार का तासुर था, वहां एक खावंद की बेबसी वाज़ेह झलक रही थी। हाँ खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जिसके दिल पर चोट पड़ती है उसके ख्यालात तुमसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। किसी को अपना दुश्मन कहना कुछ और बात है, लेकिन अपने दुश्मन को अपने किसी अजीज का खून बख्श देना बड़ी ही नामुमकिन बात है। तुम किस किस को कायल करोगे कि वो उन दो मुसलमानों की जान बख्शी कर दे? तुम जाओ खालिद, उन दो मुसलमानों को अपने कबीले के रहम करम पर छोड़ दो। खालिद खामोशी से वापस चला गया। फिर खालिद को वो भयानक मंजर याद आया जब बाहर मैदान में लकड़ी के दो खंभों के साथ खुबैब और जैद बंधे खड़े थे। तमाशाइयों को चीखता चिल्लाता हुआ हजूम इकट्ठा हो गया था। उधर से अबू सुफियान और हिंद घोड़ों पर सवार हजूम में दाखिल हुए। हजूम के नारे और इंतकामी नारे पहले से ज्यादा बुलंद हो गए। अगर इस हजूम में कोई खामोश था तो वो सिर्फ खालिद बिन वलीद था। अबू सुफियान घोड़े पर सवार दोनों कैदियों के करीब गया और दोनों ने उससे कहा कि वो जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ना चाहते हैं। अबू सुफियान ने उन्हें इजाजत दे दी। खालिद बिन वलीद अब मदीना की तरफ जा रहा था। उसे जब वो मंजर याद आया कि दोनों कैदियों के हाथ खोल दिए गए और वो किबला रू होकर नमाज पढ़ने लगे। खालिद पर उस वक्त जो असर हुआ था वो अब 4 साल बाद उसकी जात से उभर आया। घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे खालिद का सर झुक गया। खुबैब बिन अदी और जैद बिन दसना हजूम की चीखों पुकार से ला ताल्लुक अपनी मौत से बेपरवाह खुदा के हुजूर रुकू व सजूद में महव थे। उन्होंने निहायत इत्मीनान से नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए। कोई नहीं बता सकता, तारीख भी खामोश है कि उन्होंने खुदा से क्या दुआ मांगी होगी। उन्होंने खुदा से ये नहीं कहा होगा कि दुश्मन उन्हें आजाद कर दे। वो उठे और खुद ही लकड़ी के खंभों के साथ पीठें लगाकर खड़े हो गए। ओ बदकिस्मत इंसानों, अबू सुफियान ने बड़ी बुलंद आवाज से खुबैब और जैद से कहा, तुम्हारी किस्मत और जिंदगी मेरे हाथ में है। अपनी जुबानों से कह दो कि हम इस्लाम को तर्क करते हैं और अब हम अहले कुरैश में से हैं और 360 बुतों को बरहक मानते हैं। ये ऐलान कर दो और अपनी जिंदगियां मुझसे वापस ले लो। अगर नहीं तो मौत को गले लगाना होगा। ये भी सोच लो कि तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। ए बातिल के पुजारी अबू सुफियान, जैद की आवाज गरजी, हम लानत भेजते हैं पत्थर के उन बुतों पर जो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। हम लानत भेजते हैं आज़ा और हबल पर जो तुम्हें अगले जहान दोज़ख की आग में फेंकेंगे। हम पुजारी हैं उस एक अल्लाह के जो रहमान और रहीम है, और हम आशिक हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्लाह के रसूल हैं। मेरा रास्ता वही है जो जैद ने तुम्हें दिखा दिया है। खुबैब ने बुलंद आवाज से कहा, ए अहले मक्का, सच्चा वही है जिसके नाम पर हम कुर्बान हो रहे हैं। हमें नई जिंदगी मिलेगी और इस जिंदगी से वो जिंदगी ज्यादा हसीन और ज्यादा मुकद्दस होगी। बांध दो इन्हें खंभों के साथ, अबू सुफियान ने हुक्म दिया। ये मौत का मजा चखने के बड़े शौकीन लगते हैं। दोनों के हाथ पीछे करके खंभों के साथ जकड़ दिए गए। अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा और हजूम की तरफ चल पड़ा। आज़ा और हबल की कसम, अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से हजूम से कहा, मैंने अपने कबीले में कोई एक ऐसा नहीं देखा जो अपने सरदार पर इस मोहब्बत और इसार से जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो, जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार उसके नाम पर फिदा होते हैं। हिंद अपने घोड़े पर सवार कुछ दूर खड़ी थी। उसके करीब उसके चंद एक गुलाम खड़े थे। एक गुलाम ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए जोश का ऐसा मुजाहिरा किया कि बर्छी तान कर दोनों कैदियों की तरफ किसी के हुक्म के बगैर बड़ी तेज दौड़ा
और खंबे से बंधे जैद के सीने पर बर्छी का इतना जोरदार वार किया कि बर्छी की अनी जैद की पीठ से बाहर निकल गई। जैद बिन दसना फौरन शहीद हो गए। उस गुलाम ने सीना तान कर हजूम की तरफ खराजे तहसीन की तवक्को पर देखा, लेकिन हजूम कुछ और ही किस्म का शोर करने लग गया था। तमाशाई कहते थे कि यह कोई तमाशा नहीं हुआ, ये मुसलमान इतनी सहल मौत के काबिल नहीं, हमें कोई तमाशा दिखाओ, कत्ल कर दो इस गुलाम को जिसने एक मुसलमान पर इतना रहम किया है कि उसे जल्दी ही मार डाला। हिंद ने दबी हुई आवाज में कहा। कई आदमी तलवारें और बर्छियां लहराते उस गुलाम की तरफ दौड़े, लेकिन बहुत से आदमी दौड़कर उन दो आदमियों और गुलाम के दरमियान आ गए। खबरदार, पीछे हट जाओ, एक आदमी ने, जो घोड़े पर सवार था, ललकार कर कहा। अरबी खून इतना बुज़दिल नहीं कि वो दो आदमियों को बांध कर मारने के लिए कुरैश का पूरा कबीला इकट्ठा हो गया है। खुदा की कसम, अबू सुफियान की जगह अगर मैं होता तो इन दोनों को आजाद कर देता। ये हमारा खून है और ये हमारे मेहमान हैं। हम इनमें से मैदान जंग में लड़ेंगे। ये आवाज किसकी थी? जी हाँ, ये खालिद बिन वलीद था। ये ठीक कहता है, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। हजूम में से कई आवाजें सुनाई देने लगी। दुश्मन को बांधकर मारना अरब की रिवायत के खिलाफ है। तमाशाइयों के हजूम में से बेशुमार आवाजें ऐसी सुनाई दे रही थीं जो कहती थीं कि हम तमाशा देखेंगे, दुश्मन को इस तरह मारेंगे कि वो मर मर के जिए। थोड़ी देर बाद तमाशाइयों का हजूम दो हिस्सों में बंट गया। एक गिरोह खुबैब के कत्ल के खिलाफ था, उसे वो अरब की रिवायती बहादुरी के मुनाफी समझता था, और दूसरा गिरोह खुबैब को तड़पा तड़पा कर मारने के नारे लगा रहा था। खालिद ने जब अहले मक्का को और दूर दूर से आए हुए तमाशाइयों को इस तरह एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते देखा तो वो दौड़ता हुआ अबू सुफियान तक पहुंचा। देख लिया अबू सुफियान, खालिद ने कहा, देख लें यहां हमारे कितने हामी हैं। एक को मार दिया है, दूसरे को छोड़ दें, वरना अहले कुरैश आपस में टकरा जाएंगे। हिंद ने खालिद को अबू सुफियान के पास खड़ा देखा तो वो समझ गई कि खालिद भी खुबैब की रिहाई का हामी है। हिंद ने घोड़े को ईड़ लगाई और दोनों के पास जा पहुंची। खालिद, हिंद ने सख्त बिफरी हुई आवाज में कहा, मैं जानती हूं कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम अबू सुफियान को अपना सरदार नहीं मानते? अगर नहीं तो यहां से चले जाओ। मैंने जो सोचा है वो होकर रहेगा। खालिद, अबू सुफियान ने कहा, अगर तुम समझते हो कि मेरा हुक्म और मेरे इरादे सही नहीं तो भी मुझे इस पर अमल करने दो। अगर मैंने अपना हुक्म वापस ले लिया तो ये मेरी कमजोरी होगी। फिर लोग मेरे हर हुक्म पर तवक्को रखेंगे कि मैं अपना हुक्म वापस ले लूं। आज खालिद को मदीना के रास्ते में याद आ रहा था और उसे अफसोस हो रहा था कि उसने अबू सुफियान का हुक्म मान लिया था। खालिद की खूबियों में सबसे बड़ी खूबी नज़्म ज़ब्त और अपने सरदार की इताअत थी। उसने अपने सीने पर पत्थर रखकर सिर्फ इसलिए अबू सुफियान का हुक्म मान लिया था कि अहले कुरैश में हुक्म अदूली की रिवायत कायम न हो। ए अहले मक्का, अबू सुफियान ने दो गिरोहों में बटे हुए तमाशाइयों से बुलंद आवाज में कहा, अगर आज यहाँ दो मुसलमानों के कत्ल पर हम यूं बट गए तो हम मैदान जंग में भी किसी न किसी मसले पर बढ़ जाएंगे और फतह तुम्हारे दुश्मन की होगी। अगर अपने सरदारों की इताअत से यूं इन्हिराफ करोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हजूम का शोर गूंगा कम हो गया, लेकिन खालिद ने देखा कि अहले मक्का के कई एक सरदार चेहरों पर नफरत के आसार लिए हुए घरों को वापस जा रहे थे। उन्हें देखकर बहुत से लोग भी जो तमाशा देखने आए थे वापस चले गए। खालिद वहां रुकना नहीं चाहता था, लेकिन वो खतरा महसूस कर रहा था कि दोनों गिरोह आपस में टकरा जाएंगे। उसके अपने कबीले के ज्यादातर लोग तमाशाइयों में मौजूद थे और कम अज कम वो अपने कबीले को काबू में रखना चाहता था।